नमस्कार। वेलकम टू रसशास्त्र एंड भविष्य कल्पना क्लास। खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर देवाशीष पाणिग्राही, प्रोफेसर रसशास्त्र एंड भविष्य कल्पना, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we are going to discuss regarding session number 21. The topics are heating device, brief description and applications of Chullika, Sattvapathana Patala and Gara. Heating device. During various procedures in pharmaceutical preparations, heating is an essential point. Here, in this chapter, we are going to discuss various types of heating devices which was used during ancient as well as current times. It is very interesting to identify that in those days, the scholars of Ayurveda has practiced some technology for uniform heating with the help of specifically built fireplaces, selected fuel obtained from the wood of particular plant or cow dung cake, etc. Now we will discuss about Chullika. In English, fireplace and kilns are the synonyms of Chullika. The term kilns derived from English word silin. Old English was silin, and silin comes from Latin word culina, means culinary. Culinary, as you all know, is the preparation of dishes, science of preparation of dishes. Here in this figure, you can see two types of Chullika, and one is portable Chullika or hearth or fireplace. Synonyms of Chullika. According to Rasa Tarangini, Angaradhanika Kshata Hasanti Cha Hasantika Angara Sakati Chapi Chullika Cha Nigadyate. These are the synonyms. Then again the two lines, Angaradhanika Vesa Mrudu Prasadika. Where it is used, Chullika, where it is used for applications of Chullika. Bangadinam Dhalonado Visesena Prayujyate. So these four are synonyms: Angaradhanika, Hasanti, Hasantika, Angara Sakati. Used for Mrududrabya, Prasadika, Sadhana. Mrududrabya, here we can describe Mrududrabya with reference to hardness, with reference to melting point. In the second line, it is described Bangadinam Dhalanado Viseshana Prayujyate. Banga or tin metal, which is melting point of 242 degrees centigrade, can easily be melted. बंगा आदि धातुओं को ढालन करने में विशेष रूप से प्रयोजित होता है और मृदु द्रव्यों का साधन करने के लिए चुल्ली का यूज किया जाता है। ढालन उसे कहते हैं जब हम किसी भी मेटल को मोल्टेन कर लेने के बाद फिर किसी और लिक्विड मीडिया में उसमें डाल देते हैं। कोष्ठी, कोष्ठी उसको कहते हैं, आजकल आप जिसको भट्टी नाम से जानते हो,
जैसे कि तंदूरी या नान भट्टी बनता है। चुल्लिका में टेम्परेचर लॉस होता है ज़्यादा। अगर हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए किसी मेटल या मिनरल को मेल्ट करने के लिए, तो जो ऊपर आपने चुल्लिका देखा उसमें उतना टेम्परेचर नहीं हो पाता है। भट्टी में टेम्परेचर मेंटेन रहता है, टेम्परेचर लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसलिए टेम्परेचर जल्दी राइज होता है। तो ये भट्टी ही है जो कॉस्टली है। रेफरेंस अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय, सत्वानां पाचनार्थ प्रतीतानां विशुध्यते कोष्ठिका विविधाकारस्तासां लक्षणम् उच्यते। The second definition according to रसतरंगिणी, सत्वादि पातना च्यर्थ द्रव्य ढालन साधिका बन्ही संधानिकाया कोष्ठिका सा निगद्यते। In the background you can easily find the structure of कोष्ठी. For the purpose of extraction of metals from its mineral ores, that is sattvopatana, it is used for its separation from impurities, visuddhi, pouring molten metal mineral to prescribed liquid media, that is dhalana. Various types of heating devices are used with different shapes and sizes. This is the definition. Koshti, commonly used koshtis are Angara koshti, Patala koshti and Gara koshti. Now we will discuss about Angara koshti. Parts of Angara koshti. Here you can see pit made from bricks. This is the number 1 structure. Then Bankanala, the connecting tube, blue color, and third भस्त्रिका, एयर ब्लोअर। आप सभी लोग इसको धोकनी नाम से भी जानते हैं। यह मैनुअल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है। मेजरमेंट, सबसे पहले इसके मेजरमेंट के लिए रसरत्न समुच्चय ने बताया राजहस्तम उत्स्येद तद अर्धम आयाम विस्तार। राजहस्त उत्स्येद, उत्स्येद और हाइट शुड बी ऑफ राजहस्तम, तद अर्धम आयाम विस्तार, राजहस्त का आधा 50% उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ, आयाम विस्तार होना चाहिए। तो यहाँ फिगर में आप लोगों को इसका मेजरमेंट ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। पहले कैसे बनाना चाहिए, चतुरस्रात कुंडे यानी कि पीठ से रेक्टेंगुलर चतुरस्रा शेप पीठ प्रिफरेबली मेड ऑफ ब्रिक्स एंड इट शुड स्मेड विथ काउ डंग एंड सॉइल वेष्टिता मृन्मयेन। सबसे पहले हम उसको स्टोन पत्थर या मिट्टी से ईंट से ब्रिक से एक चतुरस्र रेक्टेंगुलर ईंट बनाएंगे और उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ मिट्टी और गोबर मिला के अच्छी तरह से स्मूथ सरफेस बना दिया जाएगा। डायमेंशन ऑफ द पीठ शुड बी एज फॉलोज, हाइट 30 अंगुल राजहस्त प्रमाण और 55.88 सेंटीमीटर, लेंथ एंड ब्रेड्थ तद अर्धभाग 30 अंगुल का, राजहस्त का आधा भाग 15 अंगुल और 27.94 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लाइन में जो कनेक्टिंग ट्यूब है उसके बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय, 2 कनेक्टिंग पाइप्स शुड बी प्लेस्ड एट 6 अंगुल प्रदेश प्रमित, ग्राउंड से
6 अंगुल ऊपर यहाँ 2 नलिका ट्यूबुल्स लगाने चाहिए फ्रॉम द सरफेस विथ ए होल डायमीटर ऑफ चतुरंगुल मानेन रंध्रेण, यानी कि जो होल होगा कनेक्टिंग ट्यूब का वो 4 अंगुल डायमीटर का होना चाहिए। हम दोबारा से बता दें, जो इसका हाइट होगा वो राजहस्त प्रमाण यानी कि 30 अंगुल का होगा और इसका चौड़ाई और लंबाई दोनों 15-15 अंगुल का होगा और जमीन से सरफेस से 6 अंगुल ऊपर इसका कनेक्टिंग ट्यूब्स जो एयर ब्लो होता है वो कनेक्ट किया जाएगा, जिसका डायमीटर 4 अंगुल का होना चाहिए। ये है मेजरमेंट अंगारकोष्ठी का। इंटरनल अरेंजमेंट्स एंड हीटिंग पैटर्न। Mesh is arranged inside to hold charcoal. Shikhitra. Charcoal is filled at the base of fireplace from the top. Then the crucible containing drug substances appropriately placed over the charcoal and remaining gap is filled by more charcoal. जो कोयला होता है वो ऊपर से ही डाला जाता है और जितना कोयला का आवश्यकता होता है उतना कोयला डालने के बाद उसके ऊपर द्रव्ययुक्त मूसा या द्रव्ययुक्त गलक को रखा जाता है। आफ्टर लाइटनिंग द एयर फ्लो इज कंटिन्यूड एज पर रिक्वायरमेंट्स थ्रू भस्त्रिका। अग्नि प्रज्वलन करने के बाद कोयला में जो धोखनी है एयर ब्लोअर है उसमें एयर पंप किया जाता है मैनुअली या मैकेनिकल, जैसा कि जितना आवश्यक होता है। मासेस ऑफ सत्वोपातन मटेरियल इन राउंड फॉर्म बोलंच। जो सत्वोपातन करना है इसमें रसरत्न समुच्चय के अनुसार उसमें बताया गया है कि उसको गोलाकार बना के रख लें और एक बार में 5 गोला यहाँ रख सकते हैं। सत्वोपातन मटेरियल इन राउंड फॉर्म गोलंच इन द नंबर ऑफ पंच 5 नंबर में एट ए टाइम 2 टन बर्न्ड टिल एक्सट्रैक्शन ऑफ द सत्व और मेटल इज रिकवर्ड। नेक्स्ट यूज ऑफ अंगार कोष्ठी इज खराणाम सत्वोपातिनी। खर द्रव्य का सत्वोपातन करने के लिए चुल्ली का हम यूज कर रहे थे मृदु द्रव्य का सत्वोपातन करने के लिए, और यहाँ पर जो ज़्यादा हार्डनेस है या ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पर चाहिए वैसे द्रव्यों का सत्वोपातन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रसतर्गणी के अनुसार द्रव्य ढालन साधिका। इट इज हेल्पफुल फॉर मेल्टिंग एंड पोरिंग इन ए लिक्विड मीडिया पर शोधन प्रोसेस। ढालन प्रोसेस होता है, ये ढालन प्रोसेस के लिए यूजफुल होता है, ऐसा रस तरंगणीकार का कहना है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम पातल कोष्ठी। पातल कोष्ठी जैसे कि इसका नाम से प्रतीत होता है, ए पीट इज मेड अंडरग्राउंड एंड हीटिंग प्रोड्यूस प्रोसीजर डन इनसाइड, हेंस दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज पातल कोष्ठी। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, समतल भूमि में एक गड्ढा खोदा जाता है। ये मिट्टी जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो मिट्टी खोद के निकाला गया है, और एक ब्लू कलर का आपको पाइप जैसा दिख रहा होगा, ये एयर ब्लोअर पाइप है जो इस मिट्टी के अंदर कनेक्ट होता है। इसके आगे वाले फिगर में आपको और ज्यादा क्लियर दिखेगा। तो इसका रेफरेंस है रसरत्न समुच्चय से दृढ़ो भूमौ चरेत गर्त वित्तस्य सम्मित सुमो। दृढ़ भूमि होना चाहिए, पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, डंप नहीं होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। अगर पानी भरा हुआ होगा क्योंकि जमीन खोद के
हम इसमें पाताल कोष्ठी बना रहे हैं, तो ऊपर पानी होगा तो नीचे भी हमें पानी मिलेगा, और जब टेम्परेचर हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर हमें अचीव नहीं होगा, जो फ्यूल हम इसमें देंगे वो फ्यूल प्रॉपरली जलेगा नहीं, इसलिए भूमि दृढ़ होना चाहिए या बालू युक्त नहीं होना चाहिए। ऐसे ही भूमि में गड्ढा खोदना चाहिए। कैसा गड्ढा? वितस्य संमितम शुभम, एक वितस्ती, यानी कि वितस्ती 12 अंगुल का होता है, 12 अंगुल डायमीटर का और 12 अंगुल गहरा। अच्छी प्रकार से इस प्रकार का डायमीटर वाला और गहरा वाला एक गड्ढा खोदना चाहिए। वर्तुलाचार और उसका शेप राउंड शेप होना चाहिए। तन्मध्ये गर्तमन्य प्रकल्प है। उस गड्ढे के अंदर बीच में, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ध्यान से देखिए, और एक छोटा होल भी दिख रहा है, तो ऐसे और एक छोटा गड्ढा उसके अंदर भी खोदना चाहिए। उसका डायमीटर उसके आगे वाले साइड में दिखाया गया है। इन ए हार्ड एंड प्लेन सरफेस a round shape pit should be dug with diameter of 1 vitasti or 12 angular or 22.5 centimeter. At the bottom, another smaller pit also prepared with 4 angular diameter as per reference. Pit arrangement, this is the internal pit arrangement. यहाँ आप ध्यान से देखिए, इस गड्ढे के अंदर दूसरा एक छोटा गड्ढा होगा और उस छोटे गड्ढे के अंदर भी आपको एक ब्लू कलर का दिख रहा होगा। ये जो बाहर पाइप आपको दिखाया गया था, उस पाइप का वो एक ओपनिंग था जहां से एयर ब्लो करेंगे, और यहाँ पर वो एयर ब्लो रिसीव होगा। तो इंटरनल अरेंजमेंट कैसा होगा? चतुरंगुल विस्तार निम्नत्वेन समन्वित। जो बड़ा वाला पीट खोदा गया था 12 अंगुल डायमीटर का और 12 अंगुल गहरा का, उसके अंदर और एक चतुरंगुल विस्तार, 4 अंगुल डायमीटर और 4 अंगुल गहरा वाला और एक गड्ढा खोदा जाता है। गर्ताधराणि पर्यंतम तिर्यक नाल समत्व। उसके बाद गड्ढे की सेंटर तक, नीचे तक तिर्यक ऑब्लिकली एक कनेक्टिंग ट्यूब जोड़ा जाता है। इनसाइड द स्मॉलर 4 angular pit, the air blower connecting pipe should be fixed properly. मेश, यहाँ एक जाली की भी आवश्यकता है। संहिता के अनुसार मृतचक्रिम पंचरंध्राढ्याम गर्भ गर्तोदरे क्षिपे। आज के समय में हम आयरन का जाली या मेश भी यूज कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार मिट्टी का एक राउंड शेप चक्रिका बनाना चाहिए। उस चक्रिका में प्लेट में पंचरंध्र कम से कम 5 होल्स होना चाहिए, और वो 5 होल वाला चक्रिका कहाँ प्लेस होगा? जो ये छोटे वाला होल है 4 अंगुल डायमीटर और 4 अंगुल गहराई वाला, जिस गड्ढे के अंदर आपका पाइप लगा हुआ है, उसके ऊपर ये जो जाली है, चाहे आज के समय के लोहे का हो या पुराने समय में मिट्टी का बना होना चाहिए था, 5 रंध्र वाला, यहाँ प्लेस कर देना चाहिए। A mesh or earthen vessel having 5 holes should be placed over the small pit to facilitate proper air flow and preventing choking of the air vent opening. ये क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि हमें जो अंगार है, कोयला है, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर पाइप दिया गया, तो उस पाइप के थ्रू एयर तो पहुंचेगा, लेकिन ऊपर से जब वो जल जाएगा कोयला, तो नीचे वो धंसता जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो जो एयर ब्लो पाइप है वो चोक हो जाएगा, उसमें हवा नहीं आ सकता है, और आगे जो हमें टेम्परेचर चाहिए विदाउट ऑक्सीजन, ये प्रॉपरली हमें टेम्परेचर जनरेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वो नीचे नहीं आए, एक जाली रख दिया जाता है, और उसके थ्रू हवा भी आ सकता है, इसलिए जाली का काम दोनों प्रकार से हो सकता है। यहाँ क्रॉस सेक्शन करने के बाद जमीन के अंदर और क्लियरली डायमेंशन और अरेंजमेंट समझ में आता है। तो
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़ा वाला गोलक था गड्ढा, वो 12 अंगुल का डायमीटर है और 12 अंगुल ही उसका गहराई है। उसके नीचे 4 अंगुल डायमीटर का और 4 अंगुल गहरा और एक छोटा गड्ढा खोदते हैं। बीच में जाली लगा दिया जाता है और छोटे वाले जो गड्ढा है उसमें से ऐसा ऑब्लिक तिरछा एक पाइप कनेक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू एयर ब्लो बाहर से किया जाएगा, फ्रेश एयर, और यहाँ ये पहुंचेगा, ऊपर जाएगा और जाली के थ्रू ऊपर से जो कोयला जल के नीचे आएगा वो नीचे बंद नहीं कर पाएगा और एयर पंप होता रहेगा। फ्यूल एंड हीटिंग पैटर्न आपुरीय कोकिले कंठी प्रथमेदक वस्त्रय। उसके बाद उस बड़े वाले गड्ढे में कोयला पूरा भर दिया जाता है और कोष्ठी को धमन किया जाता है थ्रू भस्त्रिका और भोंकनी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से एयर ब्लो हो रहा है, एयर फ्लो हो रहा है और ये नीचे तक यहाँ इस चैम्बर में, छोटे वाले चैम्बर में आ रहे हैं। छोटे वाले चैम्बर से ये जाली के थ्रू ऊपर जाता है। The bigger cavity is filled with charcoal and drug substances should placed inside in a crucible. After ignition of charcoal fuel, air blown with help of भस्त्रिका और मैनुअल और ऑटोमेटिक ब्लोअर, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। इसका यूज क्या है पातालोकोष्ठिका? पातालोकोष्ठिका वैसा मृदूनाम सत्वोपादिनी भान साध्य पदार्थानाम नंदिनाम परिकीर्तिता है रसरत्न समुच्चय। तो ये मृदु द्रव्य का सत्वोपातन के लिए यूज किया जाता है। फॉर द सत्वोपातन फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मृदु द्रव्य लाइक रसक और जिंक और शिलाजंतु एटसेट्रा। भान साध्य पदार्थानाम कैन ऑल्सो बी यूज्ड वेयर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। और सबसे पहली बात, इसका कंट्रीब्यूशन किसने दिया? नंदिना परिकीर्तिता। दिस इंस्ट्रूमेंटेशन इज एडवाइज्ड बाय आचार्य नंदी। आचार्य नंदी पहले रसशास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने ऐसा बताया था। नेक्स्ट टॉपिक, गारकोष्ठी। गार मीन्स क्ले, क्ले ऑफ पॉन्ड। जो तालाब की कीचड़ होता है उसको गार बोलते हैं। As this heating device is made of the pond clay, hence the name गारकोष्ठी। क्योंकि ये गार से बनता है इसलिए इसका नाम गारकोष्ठी। इसका आकार जैसे कि आप अंगारकोष्ठी पहले वाला कोष्ठी देखे थे, कुछ ऐसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें भी जमीन के ऊपर रखा गया है और बीच में एक नलिका जुड़ा हुआ है और नलिका ढोकनी तक कनेक्टेड है। इसका डायमेंशन 12 अंगुल निम्ना या प्रादेशो मिता तथा। तो इसका जो लंबाई होगा, लेंथ होगा, हाइट होगा, वो हाइट होगा 12 अंगुल का और इसका डायमीटर होगा वो प्रादेश मात्र का, यानी कि प्रादेश लगभग 9 अंगुल का होता है। और चतुरंगुलाश्चर्ध बलयेन समन्विता, जमीन से 4 अंगुल के ऊपर यहाँ वलय लगाया जाएगा। अगर आप ध्यान दें, इससे पहले भी जो आपको पातालकोष्ठी बोला गया था, वहां पर भी जमीन के नीचे 4 अंगुल गहरे का एक छोटा और एक गड्ढा खोदा गया था और वहां पर एयर पाइप कनेक्टेड था ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। यहाँ पर भी सेम 4 अंगुल और नीचे एक वलय रखा जाएगा, रिंग रखा जाएगा, पूरी छिद्रवती चक्री वलय पर निक्षेप, और उस रिंग के ऊपर एक छिद्रयुक्त चक्री वैसे ही एक जाली रख दिया जाएगा। तो यहाँ मैं दोबारा से आपको बताना चाह रहा हूँ, गारकोष्ठी का जो ऊंचाई होगा वो 12 अंगुल का होगा, जो डायमीटर होगा वो प्रदेश मात्र यानी कि 9 अंगुल का होगा, और ये गार मृत्तिका कीचड़ से बना होगा
और जमीन से 4 अंगुल ऊपर एक वलय रखा जाएगा, रीम रखा जाएगा। उस रीम के ऊपर छिद्रयुक्त चक्रिका या मेष रखा जाएगा। A round shaped pit over the ground should be prepared with height of 12 angula and diameter of 9 angula. A circular frame placed at the height of 4 angula and a base of multiple holes fixed over it. Heating pattern and use. शिखित्र निक्षिप्य प्रथमयेत् बंकनालतः गारकोष्ठी अमाख्याता सुष्टलोह विनाशः. Circle is to be filled in the pit over the mesh and drug containing in musa is placed inside charcoal. After ignition, air is blown through the blower connected through bunkanal. यूज सुष्ट लोह विनाशिनी. इसका कहीं कहीं भेद भी मिलता है. सुष्ट लोह के बदले में मृष्ट लोह. सुष्ट लोह उसको कहते हैं जैसे कि सोना या चांदी में कुछ मिलावट किया जाता है और जब सोनार लोग उसमें से गोल्ड को सेपरेट करते हैं उस चीज को सुष्ट लोह यानी कि जो उसमें मिलावट होता है उसको जला देते हैं, वो नाश हो जाता है. तो ये सुष्ट लोह विनाशिनी. सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम मेटल एलॉयज लाइक टू सेपरेट गोल्ड और सिल्वर फ्रॉम इट्स एलॉयज. In today's session number 21, we discussed here about heating device, brief description and application of chullika, sattopatana or angarakosti, patalakosti and garakosti. MCQ related to this today's class. Mrudu dravya sattopatana is advised in which kosti? अंगारकोष्ठी, पातलकोष्ठी, गारकोष्ठी और नॉन. दिस इज फॉर यू. Which of the following is not a synonym of चुल्लिका? इनमें से कौन सा चुल्लिका का सिनोनिम नहीं है? अंगारधानिका, अंगारसकटी, हसंती, पाचन. Subjective questions. Discuss the preparation method and application of various types of kosti विथ फिगर. ये 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको 20 मिनट का समय लगेगा. इसमें सभी प्रकार की यानी कि तीनों प्रकार की कोष्ठी के बारे में आपको बताया गया. वो सभी प्रकार की कोष्ठी का विथ फिगर आपको डिस्क्रिप्शन करना है. डिफाइन कोष्ठी, कोष्ठी का डेफिनेशन एंड राइट सिनोनिम्स ऑफ चुल्लिका. ये 5 नंबर का 5 मिनट के लिए आ सकते हैं. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, then mention in comment box. I will resolve it.